جب ہم گیت گا لیتے ہیں تو اس میں بریک نہیں ہوتی کہ کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں کہ ان بڑا خدا دی پرستش کر لی. یہ تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے میں مخاطب ہوں جو کسی جگہ پر بھی ہیں. دس از ناٹ اے بریک ٹائم, دس از اے ریسیونگ ٹائم. سو ڈونٹ اسٹینڈ, باہر گلی میں جا کے کھڑے نہ ہوں, کچن میں جا کے کھڑے نہ ہوں, اور کسی جگہ پہ جا کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. یو آر ان دا ہاؤس آف دا لارڈ. اور جب آپ خداوند کے گھر میں آئے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں, پرستش کرنے کے لیے آئے. صرف وہی لوگ وہاں پر ہوں جن کی کوئی ڈیوٹی ہے, وہ وہاں پر ہوں. وہ تو مجبوری ہیں, وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, کوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں. پر باقی لوگ, میری بڑی ریکویسٹ ہے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے, کبھی بھی جب خدا کے گھر میں آپ آتے ہیں تو آپ وہاں پر ہال میں, سنڈے اسکول, بیسمنٹ میں, وہ فائدہ نہیں ہے. یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. اس سے بہتر تھا آپ گھر سے نہ آتے, کیونکہ یہاں پر آ کر بھی آپ وہی کر رہے ہیں. یو آر جسٹ سیٹسفائنگ یور سیلف کہ ہم چرچ میں ہیں. تو چرچ میں آنے کا مقصد ہے خدا کے کلام کی پرستش کرنا اور خدا کے کلام کی آواز کو سننا. لیکن اگر آپ اپنا ٹائم ادھر ادھر کر جائیں گے تو نقصان خدا کو نہیں ہوگا, نقصان آپ کو ہے, نقصان میرا ہے, ہم سب کا ہے. اس لیے میں تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گا, اور تمام چرچ لیڈر سے بھی, کہ ایک دفعہ ضرور جا کر چیک کیا کریں, تاکہ نوجوانوں کو جن کی ڈیوٹی ہے وہ صرف وہاں پر ہوں. باقی لوگوں کو آپ ریکویسٹ کریں, ان کے ہاتھ جوڑیں اور انہیں کہیں یار کلام سن لو, یہ انہاں لی بھی ہے تے تواڈے لی بھی ہے. سو میری بڑی ریکویسٹ ہے, اس سال ہم تھوڑا ڈفرینٹ کریں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم. میں نہیں چاہتا کہ آپ جب خداوند کے گھر میں بھی آئیں تو آپ کا ٹائم ضائع ہو. میں چاہتا ہوں آپ برکت کی فصل کاٹیں. آمین. جو کلام آپ سنتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے تازگی ہے, معجزہ ہے. کلام کے بارے میں لکھا ہے وہ بند بند اور گودے گودے سے گزر جاتا ہے. تے جے اسی سنیے ہی نہ تے انہیں ننگنا کتھوں ہے. ہم تو سن ہی نہیں رہے اور وہ کام نہیں کر رہا. جب بیج ہی نہیں پڑے گا تو برکت کیسے ملے گی؟ زندگی اس وقت بدلتی ہے جب دل بھیگتا ہے. تو بپتسمہ لے کے گلے مسیحی ہو کے نہ پھرو. یہ صرف اس کا مطلب ہے کہ ویٹ کرسچن, صرف کپڑے گیلے ہوئے ہیں, دل یسوع کے لہو سے بھیگا نہیں ہے. خدا کن چیزوں پر نگاہ کرتا ہے؟ جن کے دل بھیگے ہوئے ہیں, جن کے دل خداوند کی قدرت سے مسا ہیں, پھر وہ برکت کی فصل کاٹتے ہیں. سو میری بڑی ریکویسٹ ہے, جہاں پر بھی آپ ہوں, آن لائن جتنے سوچیں, کسی چرچ کا بھی حصہ ہوں, کلام کی جب باری آئے تعظیم میں بڑی توجہ کے ساتھ اسے سنیں, کیونکہ یہ وہ کلام ہے. لکھا ہے کہ فرما, یسایہ کی کتاب میں 40ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک آواز آئی کہ منادی کر, اور اس نے کہا میں کیا منادی کروں؟ اس نے کہا جا سب لوگوں کو بتا دے کہ سب انسان گھاس کی مانند ہیں. اور لکھا ہے گھاس سکتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پر اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ پر خداوند کا کلام stands forever, اب تک قائم رہے گا, زندہ رہے گا. تو جیڑی قائم رہنے والی چیز ہے وہ سنیا کرو, توجہ نہ, اس کو دھیان دیں, کیونکہ یہ ہے جو آپ کو سکسیس لے کر آئے گی. یہ ہے جو آپ کی زندگی کے اندر برکت کے دروازوں کو کھولے گی. نہ تو سونے کی پریکٹس بھی اس سال چرچ میں چھوڑیں, رات نو ٹھیک سویا کرو, چرچ نہ جا کے سویا کرو کہ چرچ ایک آرام گاہ ہوئے تھے جا کے نیند. وہ یہ نہ ہوئے کہ خداوند آئے تو کہ بس اتنے انیاں باتاں اٹینڈ کر رہے ہو, بھائی جی تھی تو ستے رہندے سوار وقت, آپ تو سنتے. سوئے ہوئے انسان کو صرف خواب آتے ہیں, زندہ لوگوں کی آوازیں نہیں آتی.
तो जिंदगी बख्श कलाम सुनने आते, कभी नींद आए उठ के खड़े हो जाएं, पानी पिएं, क्योंकि हमें डेविल सुलाता है ताकि जिंदगी बख्श कलाम को ना सुन सके। ये ओरिएंटेशन थी, मेरा मैसेज नहीं है अजय। सो जो बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैसेज बरकत लेकर आए तो अपनी थकावट ਨੂੰ दूर करके चर्च आना है, फ्रेश होके आना है। खुदा की हजूरी में कौन लोग खुदा पसंद करता है? जो बड़े चौकस लोग होते हैं। वो खुदा चुनता भी फौजों में ऐसे लोगों के थी जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, और दे आर वेरी कॉन्शियस। उन्हें पता है हालात कैसे हैं। गिडियंस को जब उसने कहा था इंज दे लोग चुन जेड़े पानी लैन ते चपड़ चपड़ करके पीन, पता लगे उन्हें, चौकस। खुदावंद को ऐसे लोग पसंद है। ये सुस्त घुटनों वाले लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। ढीले हाथ, सुस्त घुटने, खुदावंद वो जिन्ने मर्जी तुसी कर लो, रोजे रखो, खुदावंद को पसंद नहीं। इसलिए मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आज आपने चंद लम्हे मुझे वक्त देना है, और फिर हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में से पिछले दिनों हम सीख रहे थे, हमने कहा कि हम 20 तारीख को एक जर्नी का आगाज करेंगे, और वो जर्नी होगी 21 डेज फास्टिंग। 21 दिनों की दुआ और रोजे में ठहरेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या था? दिस इज कॉल्ड डैनियल फास्ट। बाइबल की लैंग्वेज में इसे डैनियल फास्ट कहा जाता है। दानियल ने 21 दिनों का रोजा रखा। मुख्तलिफ रोजे हैं। 7 दिन के रोजे का जिक्र है, 3 दिन के रोजे का जिक्र है, 1 दिन के रोजे का जिक्र है, 40 दिन के रोजे का जिक्र है, 40 दिन और रात, और 21 दिन के रोजे का जिक्र है। ये बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पर हमें मिलते हैं। डैनियल फास्ट इसलिए कहा जाता है कि कई लोग हैं जो एब्सोल्यूट फास्ट नहीं कर सकते, यानी वो पूरा खाना पीना नहीं छोड़ सकते, उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए काम ऐसा है, या उनका जिस्म कमजोर है, या कोई मेडिसिन लेते हैं। तो दानियल फास्ट में लिखा है कि जब दानियल ने रोजा रखा और उन दिनों उसने कोई ऐसी खुराक ना खाई, सादा खुराक खाई, दाल रोटी। मतलब क्या था? सिंपल, टू बिकम सिंपल। लेकिन कुछ लोग हैं जो 21 दिनों को वो प्रेयर एंड फास्टिंग में रहते हैं, वो पानी पी लेते हैं सुबह से शाम तक और कुछ नहीं खाते। अगर आप कर सकते हैं, प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं जो लिक्विड ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा मकसद डाइट नहीं है, ज्यादा मकसद है हाउ मच यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। जो हांडी बनाने में टाइम लगता था वो भी खुदा को दिया कि नहीं? मकसद ये है, हम अपने जिस्म को ठीक बनाने के लिए फास्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, मशरूबात छोड़ देते हैं, हम मीठा छोड़ देते हैं, हम रोटी छोड़ देते हैं। कल एक नौजवान को मैंने देखा, मैंने कहा व्हाट अ ड्रास्टिक चेंज। तो उन्होंने कहा अंकल जी रोटी छड़ी है। मैं कहा क्या बात है। तो जो बात बताना चाहता हूं, चेंज के लिए कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअली स्लिम एंड स्मार्ट और मजबूत बनना चाहते हैं, फिजिकली तो आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होगी, पर अगर आप स्पिरिचुअली भी चाहते हैं ब्रेक थ्रू मेरी जिंदगी में आए, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। वरना ये भी साल 2024, 2025, 2023 जितने सालों से आप पैदा हुए वैसे ही साल है। सूरज वैसे ही निकल रहा है, बर्फ वैसे ही पड़ रही है, पर हमारा टाइम क्यों नहीं बदला? क्योंकि हम नहीं बदले। जब मैं और आप बदलेंगे, हमारा टाइम बदलेगा, हमारी सिचुएशन बदलेगी, हमारी चीजें बदलेंगी, और आप देखेंगे कि जो चीजें पहले थी वो अब नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। तो बाइबल मुकद्दस में से यशायाह की किताब, उसका चैप्टर 43 वर्स 19 देखेंगे और फिर हम आगे चलते जाएंगे। आइजिया चैप्टर 43 वर्स 19, और लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा,
کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ جس چیز پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے، ہاں میں بیابان میں صحرا، بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ کیا لکھا ہے؟ بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں۔ بیابان کسے کہتے ہیں؟ جنگل کو، ولڈرنیس کو، جس میں رستہ نہیں ہوتا۔ خدا کہتا ہے جنگلوں میں رستہ اور ریگستانوں میں ندیاں۔ ہماری زندگی کیسی رہی پچھلے سالوں میں، یہ آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے رہی۔ ہم سب دعا کرتے رہے، ہم سب نے کہا خداوند نئے سال میں نیا چینج آئے۔ اب کتنا چینج آیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنے چینج ہوئے ہیں، یا ویسے ہی ہیں، یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ پر بائبل کیا بتاتی ہے؟ ہم نے بریک تھرو کے لیے دعا کی، خداوند زندگیوں میں ایک چینج آئے۔ تو ان 21 دنوں میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں بریک تھرو ہو۔ ایوری نیڈس بریک تھرو۔ سب کو ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، سب کو چاہیے بریک، کہ کچھ مجھے ایسی بریک ملے جس میں میری رکاوٹیں دور ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو چاہیے؟ سب کو بریک تھرو چاہیے۔ ذرا دکھائیے، جے تسی دکھاؤ گے نہیں تو منگو گے کنج؟ بتائیں گاڈ آئی نیڈ بریک تھرو۔ سے یسو مجھے بریک تھرو چاہیے، یسو مجھے تبدیلی اپنی زندگی میں چاہیے۔ جب آپ کہیں گے تو چیزیں وجود میں آئیں گی، آپ کے ورڈز آپ کو شیپ کریں گے۔ آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو خدا ایسا کرے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا بریک تھرو کے حوالے میں سے بہت ساری چیزیں خداوند کے کلام میں سے بتائی گئی ہیں۔ بریک تھرو کا مطلب کیا ہے؟ سڈن چینج۔ 1928 میں جب ایک پینسلین دریافت کی گئی، ایک سڈن چینج، بریک تھرو آیا پوری دنیا میں۔ بیماری کے لیے وہ ویکسین دریافت کر لی گئی۔ جب کووڈ آیا تو کووڈ کی ویکسین جب دریافت کی گئی تو ایک بریک تھرو آیا۔ جب میڈیسن کمپنی نے ان کو دریافت کیا تو یہ میڈیسن کی دنیا میں ایک بریک تھرو تھا۔ کوئی بھی چیز جب بڑی پرمعنی ہوتی ہے اسے بریک تھرو کہا جاتا ہے، کہ وہ اتنی واضح ہو کہ آپ اسے کہہ سکیں کہ یہ ایک بریک تھرو ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے بریک ملی فلاں پروگرام سے اور وہاں سے میری ترقی، مجھے بریک ملی فلاں جاب سے، کہ وہ جاب نہ میں کرتا تو مجھے ترقی نہ ملتی۔ مجھے بریک تھرو ملا فلاں آرگنائزیشن کی وجہ سے، میں اس میں کام کر رہا تھا، انہوں نے مجھے تیار کیا اور میں آج اس کے وسیلہ سے ایک شخص ہوں۔ آپ کو بریک تھرو کس وسیلہ سے ملا ہے؟ یو نو ویل۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ وی آل نیڈ، میں ایک نیا کام کروں گا۔ وہ یہ چاہتا ہے بیابان میں رستے اور صحرا میں ندیاں جاری کرے۔ خداوند ہماری زندگی کے بیابانوں میں رستوں کو بنانا چاہتا ہے، گمے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو صحراؤں میں ہیں، جن کی زندگی ڈرائی لینڈ کی طرح سے ہے، ڈرائی ہے، ریگستان ہے، کوئی پودا نہیں، کوئی خوشی نہیں، ان کی لائف کے اندر خدا ہریالی کو لانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی میں بریک تھرو کے لیے دعا کریں گے۔ ہم بڑی دعا کرتے ہیں پیسے کے لیے، ہم بڑی دعا کرتے ہیں چیزوں کے لیے، پر کبھی آپ نے یہ کہا گاڈ آئی نیڈ بریک تھرو ان مائی لائف؟ خداوند میں اپنی زندگی میں ایک ایسی خاص ڈراسٹک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی ایڈوانس چینج دیکھنا چاہتا ہوں جو 2026 میں ہو۔ اور ان روزوں کے دنوں میں جتنے ہمارے ساتھ فاسٹنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے لوگ ہیں جن کی زندگی میں ڈراسٹک چینج آیا۔ ان کو نہ صرف روحانی برکات ملی بلکہ ان کو جسمانی برکات بھی ملی، بڑی خوشیاں مل گئیں۔ کئیوں کی چیزیں رکی ہوئی تھیں، کئیوں کے رشتے رکے ہوئے تھے، وہ ہونے شروع ہو گئے۔ کئیوں کی اولاد نہیں تھی، اولاد ملنا شروع ہو گئی۔ کئیوں کی جاب نہیں تھی، بزنس نہیں تھا، ان کو بزنس مل گیا۔
ड्रास्टिक चेंज, इमिग्रेशन के प्रोसेस हो गए। लेकिन ये कब था? जब मांगा। God, I don't want to live in that, मैं उस रेगिस्तान में, उस बियाबान में रहना नहीं चाहता। मुझे इस साल तब्दीली चाहिए, मेरे बच्चों में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे बिजनेस में मैं एक तब्दीली देखना चाहता हूं। खुदावंद, मैं अपनी आदत को हर दिन रिपीट नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू चेंज माई हैबिट्स। ड्रास्टिक चेंज, ब्रेक थ्रू। मैं जब इसे देख रहा था कि कई लोग हैं जो जिंदगी में बहुत सारी रुकावटों, मुश्किलात का सामना करते हैं, दे शुड प्रे, खुदावंद मुझे एक ब्रेक दे दे। वो दिन मेरी जिंदगी, पौलुस की जिंदगी में एक दिन आया जब यीशु से नजर आया। दैट वाज हिज ब्रेक थ्रू। जब वो दमिश्क की राह पर चल रहा था, पुराने रास्ते पर चल रहा था, लोगों को मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, पकड़वाना चाहता था, पर यीशु ने अपना चेहरा जलवागर फरमाया, आसमानों से उसे आवाज दी, और जिस दिन आसमानों से उसे आवाज आई, साउल की जिंदगी बदल गई। दैट वाज द ब्रेक थ्रू। ये उसके लिए ब्रेक थ्रू था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपकी जिंदगी में भी तब्दीली लाना चाहता है। ब्रेक थ्रू। मैं जब इसे तैयार कर रहा था पिछले दिनों, इसके बारे में सोच रहा था 21 दिनों के हवाले में, तो मैंने यही चीज कही, खुदावंद हम अपनी कलीसिया में रेस्टोरेशन को चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। वो स्टैग्नेंट वाटर जो आइसी वाटर बन गया है, वो जिंदगियां जो ठंडी पड़ गई हैं, उनकी जिंदगी में ब्रेक आए। हमारे बच्चों की जिंदगी में वो रूहुल कुदस की जुबानें बोलें, वो तेरे मस्सा में चले जाएं, वो तेरी हजूरी में जाएं। हमारे बच्चे मस्सा से भर जाए और उनकी जुबान बदल जाए, उनकी आदत बदल जाए, उनकी हैबिट्स चेंज हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि वो तुझे जानने की हंगर और थर्स्ट उनमें आ जाए। तो रोजे की जो ताकत है, जो अगर आप इन 21 दिनों में इसको अपनाना चाहते हैं, इट इज वेरी पावरफुल। और वो लोग चेंज होंगे जो इसको अडॉप्ट करेंगे। आप अपनी सेहत के लिए रखते हैं इस वक्त ब्रेक थ्रू के लिए रोजा रख के देखें। सेहत के लिए आप बड़ी चीजें छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी घंटे भूखे रहते हैं, वो भी ठीक है फिजिकल, पर आपने कभी गौर किया जितना मर्जी हम जिस्म खूबसूरत बनाएं, बाइबल में लिखा है हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है। क्या है? हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है। लेकिन जो औरत खुदावंद से डरती है स्तूदा होगी। इसका क्या मतलब है? ज़ाहिरी ब्यूटी जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी, फेड हो जाएगी, फूल है कमला जाएगा। वरना जितनी मिस यूनिवर्स हैं वो वैसे ही खूबसूरत रहती, पर अगर आप उनकी पुरानी स्टोरीज को देखें तो आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये कभी कभी मिस यूनिवर्स भी रही हैं। कोई चीज आपको प्रिजर्व नहीं कर सकती। प्रिजर्व करने वाली सिर्फ एक चीज है, दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। और मैं ये चाहता हूं कि ये कलाम आपकी हड्डियों में बसे ताकि आपको तरोताजा करे। सो ब्रेक थ्रू चाहिए। फास्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम खुराक से दूर होंगे। फास्टिंग का मतलब ये है, पॉल कहता है मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूं। इसका क्या मतलब है? पहला करंथियों में जब आप पढ़ते हैं उसके 9वां बाब उसकी 27वीं आयत में वो कहता है कि आई डिसिप्लिन माय बॉडी। व्हेन यू फास्ट यू डिसिप्लिन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, उसे सिखा रहे होते हैं, उसकी तरबियत कर रहे होते हैं कि ये चीज मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आई वॉन्ट टू डिसिप्लिन माई हैबिट्स। तो पॉल कहता है मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं। कैसे मारता था? रोजे रखता था, दुआ करता था, आंसू बहाता था, भूखा रहता था कलीसियाओं के लिए। उसका कोई घराना नहीं था, उसके अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे,
उसने अडॉप्ट किए हुए थे, खुदा ने उसे फर्क खिदमत दी थी। कलीसिया उसका घराना था, कलीसियाओं में जाके रहता था। तो कहता है मैं मारता और कूटता हूं ताकि इसे डिसिप्लिन में रखूं, इसको ऐसा ना हो कि खुद मुनादी करके औरों के सामने डिस्क्वालीफाई हों, लोग समझे यार कहता तो कुछ है पर करता कुछ है। आज बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, मुनादी तो बहुत अच्छी करते हैं पर उनका चाल चलन बिल्कुल डिफरेंट है। उनमें हर शख्स है, जुबान से, मुख्तलिफ चीजों से। सो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खुदा ब्रेक थ्रू लाता है तो फिर चीजें वजूद में आती हैं। वो कहता है देखो मैं एक नया काम करूंगा। आप खुदा से कहते हो गॉड आई नीड न्यू वर्क, मैं पहला नहीं रहना चाहता, आई नीड न्यू स्टफ, न्यू क्लोथ, नई चीजें, नई जुबान, नई सोच। नई सोच भी खुदा देगा। तो जब खुदा देगा तो चीजें बदलेंगी। तो मैं बाइबल में से देख रहा था 2 सैमुएल चैप्टर 5 वर्स 20 में एक वहां पर हवाला दिया गया है ब्रेक थ्रू के हवाले से। 2 सैमुएल उसका 5 बाब उसकी 20वीं आयत में यह हवाला मैं पढ़ देता हूं, ब्रेक थ्रू के हवाला से है। और 5 बाब उसकी 20 आयत लिखा है, और दाऊद बाल पराजीम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा, क्या कहने लगा, खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसका क्या मतलब है, जो वर्ड इंग्लिश में यहां यूज किया गया है कि खुदा ने मेरे दुश्मनों को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, मेरी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू लेकर आया, फतहमंदी लेकर आया। आमीन। मेरे दुश्मनों को मेरे सामने ऐसे तोड़ा जिस जैसे पानी को। तो खास एक चीज जो आपको इन रोजों में सोचनी है कि हमें रूहानी तरक्की, अपनी नशो नमा के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए दुआ करनी है और उसे कहना है कि खुदावंद तू मुझे ब्रेक दे। एक मौजज़ा देखते हैं जल्दी से, निकालिए लूका की अंजील उसका 5वां बाब, लूका रसूल की अंजील उसका 5वां बाब। यहां पर एक वाकया दिया गया है और यह वाकया क्या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करते हैं, लिखा है पहली आयत से अगर देखें तो लिखा है जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो खुदा का कलाम सुनती थी। क्या कर रही थी? सुनती थी। और वो गनिसरत की झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले, और चल और बैठकर लोगों को कश्ती से तालीम देने लगा। अब ये खुदावंद यीशु मसीह कश्ती से तालीम दे रहे हैं ताकि लोग उन पर गिरे नहीं, वो उसकी आवाज सुने। अब हुआ क्या यहां पर, गौर कीजिए, बड़ी प्यारी और छोटी सी बात आपको बता रहा हूं जो आप लेकर जाएंगे, और वो ये है, जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से, जो पतरस है, उसे क्या कहा, कश्ती को गहरे में ले चल। और क्या लिखा है यहां पर कि शमाउन गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। अब खुदावन उनकी जरूरत को समझते थे क्योंकि वो खाली जाल धो रहे थे। उन्होंने सारी रात मेहनत की थी, कोई मछली उनके हाथ ना लगी थी। खुदा आपकी इस साल जरूरतों को समझता है कि तुसी खाली जाल ही धो रहे हो, और खुदावंद आपकी जरूरतों को देख रहा है। एक खाली भांडे नूं धोई जांदे हो, इह च कुछ पक्का नहीं सी। खुदा खाली बर्तनों को देखता है, उस जाल को भी देखता है जिसमें कोई मछली नहीं। He understands our need
ही अंडरस्टैंड कि उसे हमारी जिंदगियों में ब्रेक थ्रू की जरूरत है। उसे पता है कि इन्हें कुछ चाहिए, जिंदा रहने के लिए कारोबार चाहिए, पैसा चाहिए, इनको सेहत चाहिए, इनको विजडम चाहिए ताकि ये डिसीजन ले सके। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में थे तो उसने एक बात जो शागिर्दों से कही वो बहुत प्यारी थी, और वो क्या थी? कश्ती को गहरे में ले चल। हमारी जिंदगियां जब तक सरफेस लेवल पर होंगी, हम जब तक यीशु में डूबेंगे नहीं, हमारी जिंदगियों में कभी ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। अगर आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करना चाहते हैं, भिगोना चाहते हैं, तो किनारे से निकलकर गहरे पर जाएं। गहराई में जाने की जरूरत है। यीशु मसीह उन लोगों को लेने आएगा जो गहरे हैं, जो सतही मसीही हैं, क्रॉस पहन के सिर्फ फिरते हैं और उनको और कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ चंद एक दुआएं रटी रटाई हैं, वो रिलीजियस क्रिश्चियन हैं। खुदावंद उनको लेने आएगा जो गहराई में उसके साथ डूबे हुए हैं, उनको उठाएगा। बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है कि ब्रेक थ्रू, खुदा उनकी स्ट्रगल को देख रहा था। खुदावंद ने देखा कि वो कितने थके हुए हैं। आपको पता है मछली पकड़ने के लिए सारी रात काम करना, दिन को कभी मछली नहीं पकड़ी जाती थी। जो मछेरे हैं, जो वो मछलियों को दिन के वक्त नहीं पकड़ते, वो रात को पकड़ते हैं। जब खामोशी का टाइम होता है तब मछली ऊपर आती है। और जितने बिजनेसमैन हैं, मछलियों का कारोबार करते हैं, वो रात को निकलते हैं, दिन को वो ये काम नहीं करते। लेकिन जो चीज यहां पर थी, मैं इसको गौर कर रहा था कि खुदावंद ने पतरस से कहा, तो पतरस ने अपनी जरूरत को, उस ब्रेक थ्रू को रिकॉग्नाइज किया, उस जरूरत को महसूस किया कि मुझे चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहता हूं। तो उसने ऑपोजिट काम किया। क्या ऑपोजिट काम किया था? पहले रात को जाल डालता था, यीशु के कहने के मुताबिक दिन को जाल डालने के लिए तैयार हो गया। मैं इस जुमले पर गौर कर रहा था कि उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने क्या कहा? उसने कहा, शमौन ने जवाब दिया, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की, पूरी रात, कुछ हाथ ना आया। कई सालों से शायद हम मेहनत करते हो, 2025, 24, 23, जब से हम जवान हुए, हम तरक्की की भूख में मेहनत कर रहे हैं, पर आज भी खाली हाथ है, कुछ हाथ नहीं आया। मेहनत कर करके हम थक गए हैं, कुछ हाथ नहीं आ रहा। साल आते हैं, गुजर जाते हैं, चीजें बदल नहीं रही, मैं क्या करूं? तो खुदा कहता है, जरा किनारे से हटके गहराई में मेरे पास आ। और जब तू गहराई में जाए तो फिर क्या करना? लिखा है, उसने एक चीज जो मैं यहां पर गौर कर रहा था, उसने अपनी स्ट्रगल को एडमिट किया। शमौन ने कहा, सारी रात मैं मेहनत करता रहा, खुदा के सामने अपनी स्ट्रगल को बता रहा है, अपनी मेहनत के बारे का जिक्र कर रहा है। खुदावंद, इतने साल हो गए ने मेहनत करते। कई दफा हो सकता है कईयों के साथ औलाद की ये सिचुएशन चल रही हो। खुदावंद, इतने साल हो गए, अभी तक कोई बरकत नहीं मिली, तो वो दुआ छोड़ देते हैं, वो दुनिया में गुम हो जाते हैं, वो हिम्मत हार देते हैं। कई कारोबार, कई बिजनेस, कई इमिग्रेशन, मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं, हर शख्स के लिए है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, खुदावंद कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन पतरस कहता है, मैंने पूरी रात मेहनत की है, पर कोई मछली हाथ नहीं आई, खाली हाथ। पिछला साल भी मैं रहा, कुछ नहीं मुझे मिला। वो अपनी स्ट्रगल को एडमिट करता है, वो बताता है कि यस, ये मेरी जरूरत है, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए। पर अगर तू कहता है, वो मान लेता है। क्या कहता है? कहता है, सारी रात मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर
तेरे कहने से जाल डालता हूं, तेरे कहने से ये काम करता हूं, मेरी मेहनत बेकार है, मेरा सारा एक्सपीरियंस जाया हो गया, सारी रात एक भी मच्छी नहीं फड़ सकिया, मैं जितना मर्जी क्वालिफाइड था, कोई बरकत नहीं, कोई खुशी नहीं कमा सका, कोई बिजनेस नहीं मुझे मिल सका। पर अगर तू कहता है, अगर तू कहता है, हालांकि यीशु तो टीचर था, वो तो शेपर्ड था, उसने तो शेपर्ड का है ना। यीशु तो अगर आप देखें तो कारपेंटर का काम करता था, उसे मछलियां पकड़ने तो कोई फन नहीं था उसके लिए। बट व्हाट जीसस है कि गहरे में जाकर जाल डालो, पर वो कहता है, अच्छा हमेशा याद रखें, आपका ब्रेक थ्रू, आपकी कामयाबी कहां से शुरू होगी? जब आप अपनी कमजोरी को मान लेते हैं। पतरस ने कहा, आई एम वीक, सारी रात मेहनत करता रहा हूं, कुछ नहीं मिला, पर तेरे कहने से ऐसा साल फिर ट्राई कर लेने। मैं एग्जाम देता रहा हूं, फेल होता रहा हूं, कुछ नहीं बन सका, पर तेरे कहने से फिर एग्जाम दे देता हूं। मैं ये करता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, बट बिकॉज ऑफ यू मैं फिर से ट्राई करूंगा। तो जब आप इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमें क्या करने की जरूरत है? इन रोजों के दिनों में हमें अपनी कमजोरियों को जानना है। जैसे पतरस ने अपनी कमजोरी को जाना कि मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, वो ले गया गहरे में, वरना कहता थके हुए हैं यीशु, मनादी कर ली, हुण चल तू भी जा घर सौनी ते सानू भी सौन दे, सारी रात जागते रहे। वो कह सकता था, बट ही रिकॉग्नाइज्ड दैट्स माय नीड। दूसरी चीज उसने क्या कहा? उसने अपनी स्ट्रगल को कहा, सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ ना आया, पर तेरे कहने से मैं डाल देता हूं। सो फास्टिंग जब आप करेंगे, जब आप रोजा रखेंगे, तो आपको खुदा का रूह याद दिलाएगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। आपके दिल को, आपकी जिंदगी को उस तरीके से ढाल देगा, आपके उन एरियास आपको दिखाएगा जहां पर आपको दुआ करने की जरूरत है, और फिर आप अपनी कश्ती को उधर लेकर जाएंगे और अपनी जिंदगी की उन चीजों को पहचानेंगे कि हां मैं यहां पर कमजोर हूं। और आप जब जाल डालेंगे तो खुदा गहरे और नए काम करेगा। अच्छा, ब्रेक थ्रू के लिए क्या चीज चाहिए थी? पहली चीज जो मैं इसके लिए सोचता हूं फास्टिंग डेज में, ओबीडियंस, ताबेदारी। क्या है? ताबेदारी। पतरस ने क्या किया? ताबेदारी की, हुक्म माना। बाइबल में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। अगर आप पाक रूह आपको कुछ आइडेंटिफाई करता है तो आपने क्या करना है? रूहुल कुदस को क्या करना है? अपनी जिंदगी में काम करने देना है। पाक रूह आपसे बात कर रहा है, आपने रूहुल कुदस को कहना है, यस लॉर्ड मैं कन्फेस करता हूं। आइडेंटिफाई करें उसे। पाक रूह आपको कहता है तेरी बरकत इसलिए रुकी है कि तू बड़ा सख्त दिल है, तूने कभी मुआफ नहीं किया, इस साल मुआफ करना सीख ले। तेरी बरकत इसलिए रुकी है, तेरी जिंदगी में ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं है, तेरे अंदर हसद भरा हुआ है, अपने हसद को खत्म कर, दुआ करना शुरू कर। तो जब पाक रूह आपसे बात करे तो अपने आप को अवेलेबल करें, उसकी बात को सुने, माने और कश्ती को गहरे में ले चलें। यहां पे क्या लिखा है? शमौन को कहा कश्ती गहरे में ले चल, ओबीडियंट, रिकॉग्नाइज किया मुझे जरूरत है गहरे में जाने की, अपनी कमजोरी का इजहार किया, मेरे से तो कुछ नहीं होना, तू कहता है तो मैं डाल देता हूं। तीसरी बात, ओबे जब किया उसने, तो यहां पर मैं देख रहा हूं ओबीडियंस कैसी बरकत को लाती है। इस साल अगर आप वफादारी खुदा के साथ दिखाएंगे, दयानतदारी खुदा के साथ दिखाएंगे। अच्छा, दयानतदारी का मतलब है पूरे दिल से वफादार होना। वफादार किसे कहते हैं? फेथफुल। अंग्रेजी में बता रहा हूं, जो बच्चों को समझ नहीं आ रही उनके लिए फेथफुलनेस। फेथफुल का मतलब क्या है? हालात कैसे भी हो जाए, लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज पाएगा। हालात कैसे भी हो, आप कहें कि मैं कभी यीशु का इनकार नहीं करूंगा,
सिदरक, मिशक, अबेदनगो ने आग की भट्टी उसके सामने थी, दानियल के सामने शेर थे, शागिर्दों के सामने तलवारें थी, गरम कढ़ाई का में तेल था, कोड़े थे, पर उन्होंने कभी यीशु का इनकार नहीं किया। वफादारी, ताबेदारी, हुक्म मानना, कलाम में जो लिखा है उसको मानना, जस्टिफाई ना करना कि खुदावन ये मैंने गलती इसलिए की कि उस वक्त हालात ऐसे थे। खुदा सच्चे प्रस्तारों की इज्जत करता है। बाइबल क्या कहती है इसमें? शागिर्दों ने क्या किया कि लिखा है जब वो कलाम कर चुका तो खुदावंद ने कहा, उन्होंने माना। ओबीडियंस, मैं ओबीडियंस के हवाले से देख रहा था कि हुआ क्या ओबीडियंस में। जब आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, नूह का एक जिक्र है कि सारी रात ये काम कर रहे थे, नूह ने कभी बारिश ही नहीं देखी थी। नूह को बारिश का पता ही नहीं था। ये बारिश की होती है, ये सैलाब की होंदे ने, तूफान क्या होता है। पर खुदा ने फरमाया और उसने काम शुरू कर दिया। ओबीडियंट, शमाउन को कहा, उसने अपनी कश्ती गहरे में मोड़ दी। ओबीडियंट। और आपको पता है कि उसने कश्ती बनाई और उसने अपने खानदान को बचा लिया। अब्राहम, कैसी वफादारी। एक बेटा खुदा ने दिया और खुदा ने उससे मांगा और कहा उस पहाड़ पे जा, मोराया के पहाड़ में, वहां पर जाके इसे ज़िबा कर दे, कुर्बान कर दे। नो सेंस। बहुत सारे लोग जो खुदा को प्यार करते हैं, उन्होंने उन हुक्मों को भी माना है जिनकी कोई सेंस क्रिएट ही नहीं होती, जिनकी समझ ही नहीं आती कि ये खुदा मुझसे क्या मांग रहा है। खुदावंद 100 साल बाद तूने बेटा दिया और फिर इसे कह रहे कुर्बान कर दे। नो सेंस। पर जो खुदा को प्यार करने वाले होते हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। दे जस्ट फॉलो द रूल्स, दे जस्ट फॉलो द वर्ड। खुदा के कलाम में ये लिखा है तो ये लिखा है। मैं आपको बताऊं, हमारे मसीही ज्यादातर गरीब इसलिए हैं कि वो अपना पैसा ही खा जाते हैं, वो खुदा को ही नहीं देते। वो ऐसे काम चिपे रहते ने जी, इत्थे नहीं देना उथे देना है, इंज नहीं करना उंज करना है। वो इसी चीज में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। पर खुदा का कलाम कभी नहीं रुकता, चर्चेस कभी नहीं रुकते। खुदा अपने कलाम को फैलाने के लिए किसी ना किसी जगह से अपना इंतजाम करता है, पर उनकी बरकत रुकी रहती है क्योंकि वो दयानतदार नहीं है, वो खुदा के साथ फेथफुल नहीं है, वो परसेंटेज के चक्कर में ही है। 2% दे दा तो ठीक है, 5% दे दा। भाइयों, खुदा में परसेंटेज तो एक लेवल था, आइंदा तो लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता। खुशी से अपने पैमाने को भर कर, दाब दाब कर, हिला हिला कर। तो जब खुदा ऐसा देखता है तो फिर खुदा आपको क्यों नहीं बरकत देगा। शमौन को खुदा ने कहा कश्ती ले चल, जाल डाल, हुक्म मानना शुरू कर दिया। जो मेरा आका कह रहा है उसमें कोई बात है, तू कहता है तो डाल देता हो। तो जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्राहिम ने, नो कोई सेंस ही क्रिएट नहीं कर रही थी, खुदा ने उसे कहा, सुपरनैचुरल पावर आई, खुदा ने उसकी बेटे की जगह अपने आप को ज़िबा करवा दिया। खुदा ने कहा तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा जाएगा इस दुनिया में और सबके लिए कुर्बानी देगा। ये तो एक शबीह थी ना, वो खुदा ने उस वक्त बर्रा मुहैया किया। पर मोराया के पहाड़ पे जहां पर हैकल बनाई गई, वहां पर यीशु ज़िबा हुआ था। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, ओबीडियंस। जब आप चाहते हैं ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में आए, चेंज आए, हालात बदलें, खुशहाली आए, सहरा में नदी निकले,
چشمے پھوٹیں, بیابان کے اندر رستے نظر آئیں, آپ فاگی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ کیا ڈیسیجن لینا ہے, تو پھر اس کا حکم ماننا سیکھیں. وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے حکم سخت نہیں ہے. ہم تو چرچ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں, کلام پڑھنے کے ہمیں دقت ہے, چاہے آپ انگلش چرچ جائیں, اردو جائیں, پنجابی جائیں, کسی چرچ بھی جائیں, بہت کم لوگ ہیں جو وفاداری سے اس دن کو بھی پورا کرتے ہیں. کئی بڑے بوجھ سے آتے ہیں, کئیوں میں تو لکھا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے, تے کئی بجے ہوندے نے نہ گیا تے کوئی پرابلم ہی نہ ہو جائے, اس ہفتے کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو وہ ایک سپرسٹیشیس خیالات کے وجہ سے آتے ہیں, برکت لینے نہیں آتے. پر جو برکت لینے آتے ہیں ان کو برکت ملتی ہے. اوبیڈینس کیا ہے؟ Obedience is acting before you see the result. تابعداری کیا ہے؟ کہ رزلٹ آنے سے پہلے آپ اس طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہو. جب کوڑی آئے تو خداوند نے ان کو یہ کہا جا کے اپنے تئیں کس کو دکھاؤ؟ کاہنوں کو. تو انہوں نے کیسا ری ایکٹ کیا؟ کاہن کو کون دکھاتا تھا؟ جس کا کوڑ چلا جاتا تھا. کوڑ گیا نہیں ہے, پر ان کی تابعداری اس وقت اس رخ کو جو انہوں نے رخ کیا کاہن کی طرف, ان کا کوڑ جاتا رہا. اوبیڈینس کیا ہے؟ کہ جو کچھ لکھا ہے خدا کے کلام میں, جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے, جو کچھ میں نے سنا ہے, پوری تابعداری سے اس کو سن کر اس پر عمل کروں. سو میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنا, ان 21 دنوں میں اگر آپ بریک تھرو چاہتے ہیں تو کشتی گہرے میں لے کر جائیں, اپنی کمزوریوں کو پہچانیں. اگر پاک روح آپ کو کچھ بتا رہا ہے کہ بہن یا بھائی تیرا روزہ قبول نہیں ہونا جے تو معافی نہیں دینی تے, اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. اگر تم کہتے ہو کہ مجھ میں گناہ نہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہو, کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. We need to say obedience آپ کی زندگی میں بریک تھرو لے کر آئے گی. اوبیڈینٹ تھے اور بریک تھرو آ گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ گئے وہاں پر, بیکاز یو سیٹ, میں اپنے نیٹ کو تیرے کنٹرول میں کرتا ہوں, میں اپنے بزنس کو تیرے کنٹرول میں کر دیتا ہوں. خداوند تو کہتا ہے تو تو چیزیں لے کر آئے گا. ان 21 دنوں میں جب آپ اپنے آپ کو ہمبل کریں گے, جب آپ جھک جائیں گے, کسی وقت بھی جب آپ دعا میں جھکیں گے, خدا آپ کے بیماری کے بستر کو تندرستی کے بستر میں بدل دے گا. خدا چیزوں کو, حالات کو بدل سکتا ہے. اسے کسی گلیکسو کی ضرورت نہیں, اسے کسی ایلوپیتھی کی ضرورت نہیں, اسے کسی ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت نہیں. وہ خود جانتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے. اسے یہ نہیں ضرورت کہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں یو ڈونٹ ہیو سیڈ. وہ سیڈ کا کریٹر ہے, وہ بنا سکتا ہے. سو پوزیشن یور سیلف, اپنے آپ کو اس کی طرف پوزیشن کر لیں, اس کی طرف رخ کر لیں. پوزیشن کریں گے تو بریک تھرو آئے گا. کشتی دا منہ موڑیا سی انہوں نے, سمجھ رہے ہو میری بات؟ پنجابی میں سمجھ رہے ہیں؟ کشتی کا منہ کس طرف موڑا تھا؟ کس طرف؟ جب تک میں اپنا رخ گہرے کی طرف نہیں کریں گے. گہرے میں جانا ہے, معجزہ نہیں ہونے والا. پوزیشن یور سیلف. ان 21 دنوں میں 21 دن دیانتداری سے کرتے رہیں گے, باقی سال دیکھو آپ کو عادت پڑ جائے گی. پوزیشن یور سیلف, اپنے آپ کو خود کو تیار کر لیں. آپ کو پتا ہے یشوع نے کیا پوزیشن کیا؟ یشوع 3 باب اس کی 5 اور 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یشوع کی کتاب اس کے 3 باب میں ایک حوالہ ہے, اور پھر ہم جلدی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میرے ڈر تو نہ کیوں؟ اگر آپ خدا کے کلام کو انجوائے کر رہے ہیں تو ان فیو منٹس آئی ول جسٹ فنش.
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जोशुआ चैप्टर 3 लिखा है 5वीं आयत में, यहोशुआ ने लोगों से कहा तुम अपने आप को मुकद्दस करो क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा. In English it say, Joshua said, position yourself. अपने आप को, अपना रुख बदलो, अपनी आदत बदलो, पोजीशन अपनी चेंज करो. खुदावंद ने भी पोजीशन ही बदलवाई थी ना. शमौन को क्या कहा था? किनारे दी पोजीशन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ गहराई दी पोजीशन 'ਚ जा, तो फिर तुझे बरकत मिलेगी. So in Joshua chapter 3 verse 5 में क्या लिखा है? लोगों ने तुम अपने आप को मुकद्दस करो, मीन्स अपने आप को सेंटिफाई करो, अपना इकरार करो, खुदा के सामने अपने आप को धो, यीशु के लहू में छुप जाओ. अपना गुरूर, अपना गुस्सा, उसको यीशु के चरणों में रख दो. अच्छा, कई दफा हम बपतिस्मा लेकर भी, खुदा से दुआ कर भी, पर जहां पर कभी गुस्सा करना होता है ना, उत्थे ना मैं बपतिस्मा ना लेता हूं, फिर मैं तेनू दसदा. ਹੁਣ मैं जरा यीशु च आ गया, अंदरों आ रहा हुंदा, जरा इनू सुना चंद गल, तो हम बड़े बड़े सख्त लफ्ज बोल जाते हैं. खुदा के लोग तो मरे हुए लोग हैं. आपको पता है बाइबल ये कहती है, मैं नहीं कह रहा, मेरे ते ना लायो. पौल क्या कहता है? मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में. When you died, ते मरे हुए लोगों ने जिन्ना मर्जी उन्हां ते रंग सुट्टो, उन्हां दे गुर्दे नूं, उन्हां नूं सुइयां मारो, उन्हां नूं कुछ भी करो, उन्हां नूं मेकअप उल्टा सीधा कर दियो, उन्हां नहीं पता उन्हां ने डब्बे च लेटिया ही होना है. बस ये मरे हुए लोग हैं. तो खुदा के लोगों का मरे हुए मतलब है कि दे डोंट रिएक्ट. वो रिएक्ट नहीं करते, वो सह लेते हैं, वो सहकर अपने दुश्मन के लिए दुआ करते हैं. और जो लोग सहते हैं उनको बरकत मिलती है. सो जोशुआ कहते हैं अपने आप को मुकद्दस करो और कल के दिन तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम होंगे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन 21 दिनों में अपने आप को मुकद्दस करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को सेंटिफाई करें, यीशु के लहू में छुपाएं. और जब आप लहू में छुपाएंगे तो फिर क्या होगा? आपके लिए अजीबो गरीब काम. अजीबो गरीब का काम का मतलब है miracles will happen. आपको पता है वहां पर क्या हुआ था? जब उसने ये किया तो दरिया यर्दन उनके सामने सूख गया था. आपकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी जब आप सेंटिफाई करेंगे, मुकद्दस करेंगे अपने आप को. आपके अंदर, आपके सामने कोई भी जो मुश्किल के पहाड़ हैं वो खत्म होते जाएंगे. सो पोजीशन करना है, तैयारी करनी है, ओबीडिएंट होना है, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से खुदा आपको बरकत देगा. इन दिनों मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस पैसेज को लीजिए जो लूका की अंजील में आपके सामने पढ़ा गया. शमौन को ब्रेक थ्रू की जरूरत थी. सारी रात वो काम करता रहा, कुछ हाथ ना आया. मुझे और आपको भी ब्रेक थ्रू चाहिए. हमने बड़ी जिंदगियां जाया की हैं, शायद वो हासिल नहीं कर सके जो करना चाहिए था. आप खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरी कश्ती में आ और मुझे गहरे में ले चल. मैं तेरा हुक्म मानना चाहता हूं, मैं गहरे में जाना चाहता हूं. और क्या हुआ? जैसे ही जाल डाला, लिखा है जाल मछलियों से भर गया और जाल फटना शुरू हो गया. और उन्होंने दूसरे वालों को भी बुलाया, आवाजें दे रहे थे, आ जाओ. लोग हैरान थे कि सुबह के टाइम इतनी मछलियां. पर ओबीडियंस आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएगी. ताबेदारी आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को लेकर आएगी. अगर आप कलाम पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, खुदा के कलाम और अहकाम पर अमल करते हैं, खुदा को पहला दर्जा देते हैं. इस साल आप ये सोचते हैं मैं अपने फाइनेंसेस में, मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपने टैलेंट में उसको पहला दर्जा दूंगा. तो जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा कभी किसी का रखता नहीं है, खुदा 1000 गुना ज्यादा लौटाता है.
कायम रखता है। पोजिशन योर सेल्फ कि खुदावंद किस रिकग्नाइज कि आपकी पहचाने आपकी ज़रूरत क्या है। कश्ती को अपनी पोजीशन से हटाएं और देखें कि खुदा आपको क्या डायरेक्ट करना चाहता है। जब आप अपने आप को प्रेयर की पोजीशन में करेंगे इन 21 दिनों में, तो खुदा आसमान को खोलेगा आपकी ज़िंदगी में। सो पोजीशन योरसेल्फ इन प्रेयर। जितने लोग रोज़ा रख रहे हैं, जो नहीं रख सकते, जिनकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो सकती है, कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी, कोई काम की वजह हो सकती है, दे कैन नॉट डू, दे कैन प्रे विद अस। वो दुआ में ठहर सकते हैं हमारे साथ। वो दुआ चलते फिरते एक प्रेयर को एक हैबिट बनाएं। और जब आप प्रेयर को हैबिट बनाएंगे तो फिर आप शेरों की मांद में क्यों ना हो, शेर आपको नजर नहीं आएंगे, खुदा नजर आएगा। दानियल को शेर नहीं नजर आए थे, वरना वो डर जाता। वो खुदा की हजूरी देख रहा था क्योंकि वो दुआ करने वाला था। प्रेयर आपको डेंजर्स में प्रोटेक्ट करती रहेगी। और ये फास्टिंग एंड प्रेयर आपके लिए एक दरवाज़ा है बरकतों का। इन 21 दिनों में आप पोजीशन करें, गहरे में जाएं, जाल डालें, जाल फटना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। आओ सब खड़े हों और दुआ करें।